जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं। तो वो प्लेटफॉर्म उतना ही कठिन था जितना आज आपको मैं बता दूं बहुत कठिन है। ये जो रियलिटी शो में जो देखते ना, मैं कभी कभी देखिए मेरे मुंह से आई एम, मेरे से बड़ा तो ऑनेस्ट है ही नहीं कोई दुनिया में, ऐसा मुझे लगता है। तालियां तालियां तालियां। क्यों मैं आपको बताता हूं, अभी मैं चलिए। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके बैया, चारों तरफ तेरी छैया रे। सिर्फ एक दूरदर्शन में एक प्रोग्राम होता था आरोही, उसके लिए मैंने, आप मुंह क्या बोल रहे, आप लोग पैदा भी नहीं होते। अच्छा लगता है आपको, मालूम नहीं, हाँ कर दिया आपने, ऐसा ही होता है आजकल। सो आरोही एक चैनल दूरदर्शन में होता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां। अभी तो मैं शाहरुख खान साहब की तारीफ भी करूंगा, उन्होंने किस गाने को रिजेक्ट किया था। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, जय कुमार के साथ मुझे जय हो में सुनो ना सुनो ना, दैट्स द रियल इंटरव्यू, दैट्स द वे आई एम। मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। Now let's talk with the doers, the dreamers, believers, achievers, the successful people with their eyes to the sky and their feet on the ground. Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jai Kumar Show. Hello, namaste, salam, sat sri akal. Welcome back to Jai Ho, the Jai Kumar Show. This is a show where we have heartfelt and honest conversations with your and my favorite stars. Today is again a very special day for me to talk to another legend. इनके बारे में कुछ कहना सच्ची में सूरज को दिया दिखाने वाली बात है. इनकी आवाज ने स्टार्स को सुपरस्टार बना दिया. He is one of the most sought after singing stars of last 3 decades. He sang for all the big superstars: Shah Rukh Khan, Salman Khan, Akshay Kumar, Govinda, Amitabh Bachchan, Ajay Devgan, and you name it. Abhijit Bhattacharya has earned commendation and condemnation in a long career spanning 1,000 plus films and 6,000 plus songs in 15 different languages. He used to be the signature voice of Shah Rukh Khan. He is also known for his honest opinion on various topics. In the recent past, much of his criticism came from his social media comments rather than his work. His work is so top-rated that even his critics concede. Abhijit Bhattacharya is no walkover. He speaks without caring for the consequences or rewards, and willing to pay the price if it is so. He makes his comments without any filters, and because of which many times he gets into unnecessary controversies. But आज, जी हाँ, आज हम इनसे बहुत ही सिंपल बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंट्रोवर्सी से दूर ही रहें. वैसे जब से ये वर्चुअल स्टूडियो में आए हैं, मेरी और मेरी टीम की मुस्कान रुक रही. He is still the best. Now, without wasting any time, let me invite my all-time favorite, legendary singer, Abhijit Bhattacharya.
Abhijit ji, welcome to Jai Ho. I'm the best, I'm the best, I'm the best. Oh yes, Jay is the best. Arey, listen, Jay is my son. Yes. But you said, sir, earlier, I'm like your son. Obviously, right? obviously. You said that, right. चलिए अभिजीत जी जी। शुरुआत करते हैं. And my first question, actually, you probably have answered this multiple times, but this time I want it from a different perspective, different angle, in a way that when did you realize that you want to be a singer? Starting from your childhood, what kind of a kid you were, and the triggering point in your life कि लगा आपको कि मुझे तो सिंगर ही बनना है. सिंगर बन नहीं सकता कोई. जी. सिंगर हैज टू बी बॉर्न. बाकी आप कुछ भी बन सकते हैं. आप अच्छा खेल के क्रिकेटर बन सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि यू विल बिकम तेंदुलकर. लेकिन आप T20 में जो आज हजारों लोग खेल रहे हैं, आप क्रिकेटर बन सकते हैं. आप सीख के पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं. लेकिन आप राइटर नहीं बन सकते, क्योंकि राइटर आपकी सोच है. सिंगिंग अभी की बात छोड़ दीजिए. अभी की बात में हर कोई सिंगर है. मेरे घर पे जितने स्टाफ है, हर एक के, सिर्फ मेरे को छोड़ के मेरे स्टाफ के बच्चों का हर एक का यूट्यूब चैनल है. यू हैव टू बिलीव. किसी के मिलियन व्यूज हैं, मेरा तो है ही नहीं. मेरा ही गाना का मिलियन. तो ये सिंगर, जब हम एक्चुअली हमारे स्ट्रेचर के सिंगर को कभी आप ये नहीं बोल सकते कि सिंगर बनना था. ऐसा नहीं हो सकता. हम सिंगर हैं. हम सिंगर, जैसे ज़ेब्रा पैदा होता है और घोड़ा पैदा होता है. दोनों ही खूबसूरत है, लेकिन घोड़े को आप ज़ेब्रा नहीं बन सकता, ज़ेब्रा घोड़ा नहीं बन सकता. जिसे, लेकिन अब उस कैटेगरी में गधा भी आता है. उसी कैटेगरी में जो घोड़ा बनने की कोशिश करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर में हो गया है कि गधा घोड़ा बन सकता है. वो सॉफ्टवेयर आ गया है. लेकिन रियल का गधा घोड़ा नहीं बन सकता. लेकिन म्यूजिक, सिंगिंग में आ गया. वो सिंगिंग में आ गया कि आप मतलब वो जो एक गीदड़ जो है, वो शेर भी बन सकता है. सिंगिंग का सॉफ्टवेयर आ गया. तो मुझे ऐसा लगता है, जय, आपने भी गाना गाया होगा. अभी आप पब्लिक के सामने झूठ नहीं बोलेंगे. आपने भी ट्राई किया होगा, और आप भी पता नहीं कैसे कैसे एप्स आ गए हैं. और पीपल डेयर टू सेंड मी दोस. दे आर सो स्वीट. आई विल से दे आर वेरी स्वीट. और मुझे भेज देते हैं. मैं तो लाइफ में कभी लता जी को अपना इतनी हिम्मत नहीं कि लता जी को कोई अपना मैं गाना भेज सकूं. मतलब मेरा हाथ कांप जाएगा. लता जी को क्या मैं कभी उनके जो स्टेचर के, उनका कोई स्टेचर, वो लोग भगवान है. उनको अगर मैं बोल दूं कि मुझे एक गाना आपको सुनाना है, तो आज भी नहीं कर सकता. जबकि उनके साथ स्टेज पे मैंने इतने सारे शोज किए हैं. ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं है उनको बोलने की एक मेरा एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया, मैं आपको सुना दूं. हिम्मत नहीं है मेरी. जी जी. एंड अभिजीत जी, जब we were working on this song, the welcome song of yours, welcome Abhijit ji song. So I was with my team, with our small band, which we call it as Jai Ho Band. My singer, Robin, I was telling her that she needs to be really, really perfect this time, because we have to make sure कि नहीं तो अभिजीत जी पकड़ लेंगे, खराब सिंगर है, खराब बैंड है, जय का शो ही खराब है. So we have to make sure that we get a perfect welcome song out. And we were very nervous. I mean, I was really nervous to send you that song. जी. नहीं, मैंने सुना है वो गाना. जी, मैंने सुना है आपका वो गाना. तो मैं तो अभी भी वेट कर रहा हूँ कब आप सुनाएंगे, कब बजाएंगे. इतना स्वीट है, इतना क्यूट है कि मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज अ डिफरेंट एक सेगमेंट है. वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है. जो गाना आपने बनाया वो डिफरेंट कैटेगरी पे. उस कैटेगरी में मैं हुई नहीं. अच्छा बुरा तो हो ही नहीं सकता. उस कैटेगरी में मैं हुई नहीं, तो मैं कैसे. लेकिन जो काम मैं नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी मैं तारीफ कर सकता हूँ. उसकी तारीफ कर सकता हूँ कि जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया. चलिए अभिजीत जी, ऐसा करते हैं क्यों ना, I mean this is the perfect time to show that
your showreel as well as share the welcome song with our audience. Today we meet a legendary singer, the best there is, multiple award winner in the world of music. Is where he belongs, having sung over 6,000 songs. And I'll tell you what is even more impressive is he sings in more than 15 languages. With his playback singing, he's gone far, turning normal film star into a superstar. And because of his singing, which is simply delightful, many films and actors have become successful. Welcome to J-Ho, the J. Kumar Show. Tell us all we want to know. Abhijit Bhattacharya, a living legend. Abhijit Bhattacharya. Let me say one thing. You are the best. चलिए अभी जी आगे बढ़ते हैं. अभी few minutes back before that showreel, then you said that you are either born singer or you are not. Now this reminds me about a book I read few years back by the name Outliers by my favorite author Malcolm Gladwell, and I can send you the copy or the link to that book. And that that author, he did a lot of research and came out with his theory that if anyone practices for 10,000 hours, then he can be the master of that particular skill. So अगर कोई 5 या 6 साल का बच्चा practice करना शुरू करता singing में या किसी भी skill में, then by the time he turns 16 years or 17 years, whenever his 10,000 hours completes, he will be the master of that art. And he gave a very good examples from Beatles. And then there is also another research from Professor Stephen DeForest from Northwestern University. And he also came out with similar kind of a concept that agar aap itne practice karen, to singing is a skill which you can acquire, which you can learn. ये इंसानों के साथ होता है या गधों के साथ भी होता है? वो मैं पूछना चाहूँ। नहीं, ये इंसानों के लिए बोला है। बहुत फेमस अगर राजपाल यादव अगर कोशिश करे कि वो अमिताभ बच्चन की तरह उनकी पर्सनालिटी बन जाएगी, वो अपनी पर्सनालिटी उनकी खुद की है, क्या समझे? राजपाल यादव की खुद की पर्सनालिटी है, लेकिन वो अगर बोले कि नहीं मैं प्रैक्टिस करके बच्चन बन जाऊंगा, तो बिल्कुल सही बोला। फिर एग्री विथ यू, हो सकता है। चलो ऐसा हो जाए, मैं 10,000 बार कोशिश करूं कि बेसुरा गाने की, नहीं कर पाऊंगा। 10,000 बार मैं कोशिश करूं कि जैसे आज के जमाने में एक से एक सिंगर से बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका ट्रैक और वो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इसलिए फेमस हुए क्योंकि वो बहुत खराब गाते हैं, क्योंकि वो अलग से वो दे स्टैंड अलग से, कहां से गाते हैं वो समझ में नहीं आते, कहां से गाते हैं। हम लोग तो मुंह से गाते हैं, तो उनकी जो आवाज है उसमें काफी स्टार लोग भी हैं। सो मैं 10,000 बार कोशिश करूं, मैं वैसा नहीं कर सकता। तो ये उनकी क्वालिटी है कि 10,000 बार वो कोशिश करते हैं, वो बन जाते हैं। और मैं 20,000 बार कोशिश करूं, 20,000 घंटे कोशिश करूं, मैं नहीं कर सकता। तो अभिजीत जी, आपको कब रियलाइज हुआ कि यू आर ए बॉर्न सिंगर? देखिए, जब मैं बचपन में था तो मेरे पेरेंट्स होंगे या मेरे बड़े लोग होंगे जो बताते होंगे कि जब मुझे सेलेक्ट किया गया स्कूल में, जब मैं नर्सरी और जूनियर केजी में एडमिट हुआ, तो जब प्रार्थना होती है या कुंदेंदु तुषार हार धरा या सरस्वती वंदना प्रार्थना, तो कोई तो ऑडिशन हुआ होगा कि कौन गाता है, कैसे गाता है। तो मैं सामने
बच्चों में सबसे फ्रंट में, मैं फ्रंट रो में खड़ा होता था। जैसे अगर 10 बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी 3 रो बनती थी, तो फ्रंट रो में सेंटर में मैं रहता था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गाता हूँ। गाना गाना और सुर में गाने में बहुत फर्क होता है। आप बॉल को ऐसे फेंक सकते हो, सामने वाला आउट हो जाएगा, लेकिन बॉल को, क्रिकेट की बॉल को ऐसे, दैट इज अ बॉलर। बाकी आप फेंक दो तो गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है। सो मैं उसके बाद जब मैं स्कूल में ही धीरे धीरे गाने लगा, कोई मुझे गोद में उठा के क्लासरूम, इस क्लासरूम से उस क्लास में टीचर्स मुझे लेके जाती थी कि अच्छा तुम वो गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ, ये गाना सुनाओ, तब हिम्मत आने लगी। लेकिन जो जुआ खेलने वाली बात थी कि अब मेरी लाइफ में टोटल इसमें ऐसा नहीं था कि मैं सिंगिंग में चला जाऊंगा, सीधा सपना देखने लगा कि मैं मुंबई में ही जाऊंगा। डेयरिंग, ये हो सकता है जब मैं क्लास, मुझे इतना याद है रामकृष्ण मिशन स्कूल में मैं क्लास 8th में था। 7th में मुझे समझ में आ गया कि मेरा प्रोफेशन जो होगा ना, प्रोफेशन मतलब वो नहीं, लेकिन क्वालिटी जो मेरी है वो एक प्रोफेशनल सिंगर की क्वालिटी है और म्यूजिक ही मेरा प्रोफेशन होगा। तो क्लास 7 से तो मैंने आई डेयर टू बिकम, मतलब डेयर टू गो टू मुंबई एंड wanted to make my career as a singer in film industry in Mumbai. So वो मैंने शुरू कर दिया था क्लास 7th 8th से। मैं समझ गया था कि मैं कितना अच्छा हूं। सो कंपटीशन मेरा तब से शुरू हो गया था। सो उस समय there was no other resource और सोर्स और कोई भी ऐसा कुछ नहीं था जहां पे म्यूजिक को सुनो एक्सेप्ट द रेडियो। हमारे घर पे तो वो भी नहीं था, क्योंकि क्या है, तो हम लोग 4 भाई और 4 भाइयों में हमारा एज डिफरेंस सबका 3 साल, किसी का 4 साल, ये एज डिफरेंस था। हमारे पिताजी ने ऑलमोस्ट 11 साल तक मेहनत किया इसी में, तो हर तीसरे साल हम लोग आ जाते थे। तो उसमें क्या हुआ कि एजुकेशन और पढ़ाई घर पे मेन वही होता था कि एक हाई स्कूल से निकला तो उसके बाद 3 साल बाद दूसरा हाई स्कूल में आ रहा है, तो वो एक कॉलेज में जा रहा है, तो वो मम्मी उसी में बिजी, पिताजी उसी में बिजी कि कैसे करके हम पढ़े लिखे। हाँ, मेरा सोर्स ऑफ जो म्यूजिक सुनने का सोर्स वाज नॉट द रेडियो भी नहीं था हमारे घर पे, जबकि उस समय एक ही सोर्स होता था म्यूजिक का, दैट वाज द रेडियो। वो भी हमारे पिताजी ने अलाउ नहीं किया कि रेडियो घर पे रहेगा। तो हम जितना भी आवाज आती थी हमारे यहाँ, तो पड़ोसी के रेडियो से आवाज आती थी, या किसी का जनेऊ हो रहा है, किसी के यहाँ रामचरितमानस हो रहा है, तो फिर बीच में गैप में फिल्मी गाने, राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो ही मिल जाए मैं जागूं तू सो जा, ये सब गाने हम दूर से सुनते थे। लाउड स्पीकर होता था वहां उस समय, चोंगे बनते थे और हम लोग क्या खुश हो जाते थे, किसी के यहाँ के चोंगे लग रहे हैं बाम्बू में ऊपर छत पे, तो हमको किसी के यहाँ 3-4 दिन 5 दिन तक या तो जागरण होने वाला है या रामचरित होने वाला है, लाउड स्पीकर बजेगा और उसे लाउड स्पीकर से हम गाना सुन लेते थे। हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो ये सब गाने सुन सुन के, मतलब लाउड स्पीकर में। सो हमारे घर पे म्यूजिक सीखने का या सुनने का भी कोई रिसोर्स नहीं था। ऑलमोस्ट टिल द एज ऑफ 14-15 जो भी गलत सलत दूर से सुनाई पड़ा वही रट लिया। आज भी वो गलत सलत गाता हूं, वही मेरी ओरिजिनलिटी है। गलत सलत गाना, लिरिक्स भूल जाना, लेकिन
उसको कवर नहीं करता हूँ, गलती होती तो सेज ही बोल देता हूँ, भैया मैं गाना भूल गया हूँ, आप लोग गाइए, माइक दे देता हूँ, तो लोग गाने लगते हैं। सामने लिरिक्स रहता है हमारा उस पे, क्योंकि अभी के सिंगरों को गाना याद रहता है, क्योंकि उनके 2 या 4 गाने या जो भी है उन्होंने लाइफ में गाए रहे या गाते हैं रट के। हमारे लिए तो जितना स्टॉक मेरा खुद का हजारों गानों का, उतना ही किशोर दा का भी है जो मैं गाता हूँ। लता जी के भी गाने हैं, आशा जी के भी हैं, हेमंत कुमार के भी हैं, रफी साहब के भी, मुकेश जी के, सबके गाने मैं गाता हूँ। तो मेरा शोज जब होते हैं तो कब शुरू होता है कब खत्म होता है किसी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि कहाँ से क्या कौन सा गाना आ जाएगा अचानक। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, कहाँ से कौन सा गाना मैं अचानक गा दूंगा कॉर्ड लेके। तो वही जो मैं उतने होते तो मैं आज भी कुछ गाने, इतने पॉपुलर गाने तब के गाने आज भी गलत गाता हूं, क्योंकि दिमाग में बैठ गया गलत। अपनी वाइफ को मैं जब नया मतलब मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, तो उसको गाना सुना के पटाता था, तो बोलती तुम गलत गा रहे हो यार पटा ही रहे तो गाना तो लिरिक्स तो ठीक करो, गाते अच्छा हो, लेकिन लिरिक्स गलत गा रहे हो। तो ये सब होता था, आज भी वैसे ही करता हूँ। तो कौन सा गाना गाया था आपने उनके लिए? हाँ देखिए, उनकी मैं झूठी तारीफ बहुत करता था, पटाना था ना। उनकी आंखें बिल्कुल छोटी, दिखती नहीं है, और मैं गाता था जीवन से भरी तेरी आंखें। मतलब वो भी खुश हो जाती थी, क्या झूठी तारीफ कर रहा है यार। ये झूठी तारीफ की भी एक मतलब मजा, उसका भी अलग है, उसकी ब्यूटी अलग है। किसी को भी आप बोल दो हट्टी कट्टी को, क्या स्लिम लग रहे हो, तो वो भी खुश हो जाती है। तो मेरी वाइफ का क्या है कि उसकी आंखें बहुत छोटी हैं, छोटी छोटी आंखें, ढूंढना पड़ता आंख कहाँ है, उसको भी तारीफ करके। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। अब क्या है कि ये गाना मैं गाता हूं, पहले भी गाता था, शी यूज्ड टू थिंक कि मैं उसके लिए गा रहा हूं। तो हो गया कि चलो तुमने सोचा, ऐसा ही समझो। And this reminds me actually, congratulations on your 30th anniversary. You recently celebrated your 30th anniversary, right? Yeah, you had a lovely post on Instagram. So, congratulations. 1990 में, 30 साल हो गए यार। बताया तो क्यों नहीं पहले से यार। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में बड़ा है दम। मैं सबसे बोलूं एक ही बात, एक लड़की पई मेरे साथ, सोने जैसे बाल है उसके चांदी जैसा तन, वो है मेरी बेबी नंबर 1, वो है मेरी बेबी नंबर 1। अरे वाह, मेरा गाना मेरे लिए, मेरी तरफ से, मेरा, ओ नो, सब कुछ मैं हूं ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अभिजीत जी, अभी आपने बताया कि आपके घर पे रेडियो भी नहीं था, and there was no other source of music. इन सब limitations के बावजूद you were able to discover yourself, you were able to know about yourself that you are a born singer. The process of self discovery is very complicated, और लोगों की जिंदगी गुजर जाती है और उन्हें पता नहीं चलता कि what was the purpose of their life, and some people keep on trying. मैं भी अभी तक कोशिश कर रहा हूँ to find out who am I. So आपने इतनी कम उम्र में रियलाइज कर लिया कि मैं तो एक born singer हूँ. So थोड़ा इस बारे में बताएं, the process of your self discovery. And the second part of this question is कि आपने कब ये डिसाइड किया कि मुझे अब
फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन इन म्यूजिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं आपके क्वेश्चन से ना आंसर्स बहुत से निकलेंगे, तो मुझे बीच बीच में मुझे रिमाइंड कराते रहिएगा कि क्वेश्चन क्या है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है? ऐसा है कि जब आपने बताया कि मैंने डिस्कवर किया, आजकल डिस्कवर ये एक ज्ञान देना चाहूंगा पेरेंट्स को। जब से आजकल इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो हर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा या उनका बच्चा, उनकी बच्ची दुनिया की सबसे टैलेंटेड है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स में ऐसा नहीं था। मेरे पिताजी सोचते थे कि ये तो क्या है, तू पागल है क्या? वहां पे रफी, जब मैं सपना देखता था कि मैं सिंगर, मुझे प्लेबैक सिंगर ही बनना है, सिंगर तो था ही, मैं प्लेबैक सिंगर बनना है, तो मुझे बॉम्बे जाना है, तो वो मुझे समझते थे कि पागल है ये थी, इसकी जिंदगी खराब हो गई। रफी साहब, किशोर कुमार, हाँ लता जी, आशा जी गा रहे हैं उस समय, और मैं सपना देख रहा हूं मैं स्कूल में। तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, नहीं बेटा, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई। जब तुम मुंह खोलोगे ना, अगर पेट में विद्या नहीं है ना, तो सामने वाला तुम्हारे गाने सुन के ताली बजाएगा, लेकिन मुंह खोलोगे तो वो तुमको ठीक से सुनेगा नहीं। सो हमारे यहाँ पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि अरे मेरा बेटा ये है इसको। अभी के पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो खुद नहीं अगर कर पाए, क्या उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं कर पाए जिस चीज का कीड़ा उन्हें था, कीड़ा और शौक। इतना इजीली लोग मुझे भेजते हैं रिक्वेस्ट, मुझे गाने का बहुत शौक है, मुझे सिंगर बनना है, तो मुझे इतना गुस्सा आता है मुझे। तो ये जो अब जो पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि उनका बच्चा है सबसे टैलेंटेड है, और ऑडिशन तो नाम के लिए होता है, ऐसे ऐसे बेवकूफों वाले ये लोग जवाब देते बिना क्वेश्चन किए हुए, इनका आंसर रेडी रहता है। जब इनको ऑडिशन से फेल कर दिया जाता है, कोई यूएस से आ रहा है, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई लोकली है, अरे नहीं यहाँ पे तो सब ऐसा चलता है। अरे ऐसे अगर कूल लोगों सबको लेने लगे तो चैनल भी बंद हो जाएगा। अल्टीमेट द बेस्ट विल ओनली गेट द स्टेज, दैट प्लेटफॉर्म। तो वो चैनल की भी इज्जत है, चैनल का भी, चैनल को सबसे अच्छी चीज को आपको दिखाना है, तभी आप देखेंगे। हम लोग क्रिटिसाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। सो मेरे समय भी मुंबई में यही था, ना कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का, ना कुछ नहीं। सिर्फ एक दूरदर्शन में एक प्रोग्राम होता था आरोही। उसके लिए मैंने, आप मुंह क्या बोल रहे हैं, आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा लगता है आपको, मालूम नहीं, हाँ कर दिया आपने, ऐसा ही होता है आजकल। सो आरोही एक चैनल दूरदर्शन में होता था, उसमें वीक में या महीने में एक बार प्रोग्राम आता था, जिसमें नए सिंगर्स लोगों को वो लोग चांस देते थे, जिसमें से अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर जी, हरिहरन को वगैरह चांस मिला था। तो मुझे उस दूरदर्शन में स्ट्रगल करने में करीब 6-7 साल लगे। वहां पे एक देसाई साहब होते थे, फिर एक किरण शेम्बेकर होती थी, जो लोग को हम स्ट्रगल करने जाते थे। तो उस आरोही से ना लोग सुन के बात बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के कानों तक पहुंचती थी कि ये एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है, ये इस तरह। तो हमको आरोही में चांस नहीं मिला नहीं, टिल बहुत दिन तक, ऑलमोस्ट फिल्मों में जब गाया तब उसके बाद शायद मुझे बुलाया गया, या ऑलमोस्ट बहुत कुछ कर चुका था। मुझे रेडियो में फेल कर दिया, रेडियो में ऑडिशन में गया, तो वहां पे ऑडिशन जितना भी मैंने जो जितना सीखा है, मैं तो फिल्मी गाने गाता था, लेकिन फिल्मी में भी क्लासिक फिल्मी गाने, क्लासिक। जो मेरा ऑडिशन ले रहे थे वो साइड में आके बोलते थे मेरे को वो गाना सुना दो। वो फिर जब रेडियो का ऑडिशन चल रहा, बोला ये क्वालिफाइड नहीं है, इससे आप क्वालिफाई नहीं होंगे।
इतना टफ था, फिल्मों में पहुंचना तो दूर की बात, आप रेडियो टीवी में नहीं गा सकते थे, इतना टफ। और आई वॉज नॉट क्वालिफाइड रियल सेंस कि वो जो धुरंधर सीखे हुए लोग, लेकिन आई वॉज परफेक्टली क्वालिफाइड फॉर फिल्म सिंगिंग। मुझे जैसे रियलिटी शो में इतना कठिन है कि चांस मिलना, उस समय तो वो भी नहीं था। उस समय सिर्फ चांस कौन देता था? या तो आर.डी. बर्मन, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, या कल्याण जैनन जी, या उसके बाद का जो नया जनरेशन था, या तो बप्पी लहरी और राजेश रोशन, इन कैटेगरी में जो आए थे, या तो वो लोग गिने गिने 5-6, या शिव हरी भी आए, इस तरह के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, खयाम साहब, उषा खन्ना जी, तो इन तक पहुंचना, इनको सुनाना, और वो लोग कभी भी किसी हालत में किसी को नहीं गवाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रोड्यूसर इतने पैसे दे रहा है, इतने बड़ी पिक्चर बन रही है, यहाँ पे बच्चन साहब हैं, उधर धर्मेंद्र है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन, तो वो लोग क्यों सोचे किसी किशोर रफी साहब को छोड़ के, लता जी आशा जी को छोड़ के किसी को चांस देना, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी उस पैरेलल्स में, तो मैंने तो उस कंडीशन पे सपना देखता रहा और जूझता रहा और जंग लड़ी वहां पे। तो वो प्लेटफॉर्म उतना ही कठिन था जितना आज आपको मैं बता दूं बहुत कठिन है। ये जो रियलिटी शो में जो देखते ना, मैं कभी कभी देखिए मेरे मुंह से, आई एम, मेरे से बड़ा तो ऑनेस्ट है ही नहीं कोई दुनिया में, ऐसा मुझे लगता है। तालिया तालिया तालिया। क्यों मैं आपको बताता हूं, अभी मैं, चलिए मैं मान लेता हूं इस चीज को, मैं खुद ही मान लेता हूं कि कभी कभी मैं बहुत क्रिटिसाइज कर देता हूं किसी टीवी को, किसी चैनल को, किसी प्रोग्राम को। किसको क्रिटिसाइज करता हूं? नेवर द कंटेस्टेंट, नेवर द कॉम्पिटिटर, नेवर द कंटेस्टेंट। मैं सिर्फ इसके जजमेंट को क्रिटिसाइज करता हूं, जजमेंट को, और सवाल करता हूं जजेस को, आप वहां क्यों बैठे हैं? आप वहां क्यों बैठे हैं? जब कंटेस्टेंट को आप बोलो कि ये गड़बड़ हुआ, तो आप गा के दिखा सकते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ ये बता सकता कि तुम्हारे में ये था, ये गड़बड़ है। गा के दिखा दो। गा के समझाने में कुछ ही नाम आते हैं, उसमें से मैं एक हूं। कोई राइटर तो नहीं बता सकेगा ना, कोई कोरियोग्राफर तो नहीं बता सकेगा ना, या कोई स्पेशल उस दिन जो हीरो या स्टार कास्ट आता है, वो लोग बेचारे बहुत अच्छे थे, वो लोग बोल रहे थे हाँ वाह गाया, ये गाया, लेकिन इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। इनका फ्यूचर को वैसा ही रहने दो जैसा ये सोच के आ रहे हैं। इनको क्या बनना है, हम कैसे सोच रहे थे कि इनको क्या बनना है, हम कौन होते हैं? लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं जब क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं जजमेंट को क्रिटिसाइज करता हूं, नॉट द शो। कि मुझे पसंद नहीं है कि जजमेंट को आप वो करके सोचते हो कि मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि लोग ये हो जाएंगे, लोग ये हो जाएंगे, सब सोचते। अरे तुम सिंपली बोल दो ना। सोच लीजिए आज के दिन में अगर नौशाद साहब हो, या खयाम साहब हो, या आर.डी. बर्मन हो, वो क्या पूरा तैयारी के साथ प्रेस स्टेटमेंट देंगे, मुझे तुम्हारे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, तुम ये नहीं होता है। पंचमदा अगर जज होते तो यही उठ के बोलते, सर ये वो, बस डायलॉग नहीं बोलते। जजेस के डायलॉग नहीं चाहिए लोगों को। मैं इस चीज को बताता हूं, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं और आज भी करता हूं, एंड आई पे अ हेवी प्राइस फॉर दैट।
स्टिल आई एम पेइंग फॉर इट। और अभी तो ऐसा हुआ है, अब लोग मुझे बुलाने लगे हैं रियलिटी शोज में फिर से कि लेट द रियलिटी शो, लेट द, इसीलिए बुलाते हैं, लेट द रियलिटी शो बी द रियलिटी, लेट द रियलिटी शो बी द रियलिटी। तो मैं सिर्फ रियलिटी हूं, मैं ऐसा ही हूं दिखने में। शायद मेकअप कर लूंगा तो भी मेरा नाक लंबा ही रहेगा, इधर मैं ग्लॉसी लगा लूंगा, बाल काले कर लूंगा, लेकिन लगूंगा ऐसा ही। तो मैं रियलिटी में ऐसा हूं। सो आई एम फ्लडेड विथ मैनी। नहीं तो अभिजीत जी, आपके आने पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है हमेशा? अच्छा, क्या कंट्रोवर्सी हुई मुझे बताइए। जैसे कि आप अभी इंडियन आइडल पे आए थे रिसेंटली, हाँ, उसमें अमित कुमार जी को लेके, राइट, देन देयर वाज अ स्टेटमेंट इन मीडिया, आई एम नॉट सो श्योर हाउ मच करेक्ट इट इज, कि अमित जी को बोला गया है कि तारीफ करना, जबरदस्ती तारीफ करना जो गा रहे हैं स्टेज पे, और आप बीच में आए और आपने कहा कि अमित जी ने ऐसा नहीं कहा। मैंने यही पूछा, ऑडियो सुना दीजिए कि उन्होंने कहा क्या, और उन्होंने कहा है तो लिखा क्या गया, बस इतना ही है। देखिए, सिंगर या कॉन्टेस्टेंट के बारे में शायद उन्होंने कुछ नहीं कहा। रियलिटी शो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा हुआ, क्योंकि रियलिटी शो मालूम पड़ गया कि रियलिटी शो कोई वो नहीं था, मेडअप नहीं था। तो जो हुआ वो रियलिटी दिखाया गया कि हाँ ऐसा हुआ। किसी ने खराब नहीं गाया, ऐसा नहीं है, गाने का चॉइस गलत हुआ। या कंटेस्टेंट को, अगर आप मुझे कल को बोल दें कि मुझे बड़े गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब की बात कर रहा हूं और किसी के नहीं, दो कान भी छोटे पड़ेंगे पकड़ने के लिए, उनकी बात कर रहा हूं, अपने देश के भगवान बेगम अख्तर, इनका गाना अगर मुझे बताया जाएगा एज ए कंटेस्टेंट, मुझे बताया जाए कि आप गाइए, मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो भाग जाऊंगा। या मैं तो ऐसा गाऊंगा कि लोग मुझे शो से ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब सिंगर हूं, दैट इज माई नॉट माई जॉनर, दैट इज नॉट माई फोटे कि मैं ये गाऊं। लेकिन मेरे अंदर अगर खुजली है, मैं बोलूंगा मैं ये भी गाऊंगा। तो वहां पे किसी को वो था कि मालूम पड़ा वो किशोर कुमार का गा रहे हैं, अब वो गा रहे हैं, तो वो शायद एक कंट्रोवर्सी हो गया, नॉट मी। तो उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि अमित कुमार ने कभी शो के बारे में कुछ नहीं बोला, ना ही किसी कंटेस्टेंट के बारे में कुछ बोला, ना मैंने शो के बारे में कुछ बोला। और मैं किसी का नाम तभी लूंगा जब वो मेरे स्टैंडर्ड में मेरे बराबर आए। नाम में बहुत बड़े हो सकते हैं, काम में बड़े उतने नहीं है। तो उनके बारे में मैं अपनी जबान पे लाके मैं इतना सम्मान उन्हें नहीं दूंगा कि मैं अपने मुंह से उनका नाम लूं। तो मैंने बोला कि मैंने नाम किसी का नहीं लिया। आप लोग अपने आप क्यों 2 और 2 5 कर रहे हो? 2 और 2 4 होता है, लेकिन 2 और 2 5 कर रहे हो, तो मैं क्या करूं? तो कंट्रोवर्सी नहीं होती मेरी जो भी होती है रियलिटी होती है। तो अमित कुमार साहब ने जो भी बोला वो रियल में बोला, लेकिन प्रिंट पे क्या आया? बोला तो कोई ऑडियो में तो आया ही नहीं। तो मैंने, वो तो चुप बैठे रहे, तो मैंने बोला, सोनू निगम ने बोला, कुमार शानू ने बोला, बाकी किसी ने नहीं बोला। और जो रियलिटी शोज हैं, इसका क्या लगता है आपको कि 20 साल के बाद ये इससे बेटर होंगे, इससे सिचुएशन खराब होगी कि ऐसे ही रहेंगे? तब ऐसा नहीं, ये सिर्फ इंडिया में सोचने की बात है, बाकी वर्ल्ड वाइड सब बहुत अच्छा करते हैं। मेलोडी है तो मेलोडी है, वो उसमें नहीं जाते। अगर गिटार लेके गा रहे हैं तो गिटार लेके ही गा रहे हैं, सिर्फ एक ड्रम, एक गिटार, एक बेस गिटार, बस हो गया। उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव शो कर रहे हैं, गा रहे हैं। वो लोग म्यूजिक में हैं। आपको अगर म्यूजिक में रहना तो म्यूजिक ही कीजिए। म्यूजिक के नाम पे कुछ और करके उसको म्यूजिक बोलेंगे तो वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, हर चीज में तो बदल गया है ना, हर चीज बदल गई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप
बॉस्टन में बैठे हैं, मैं मुंबई अंधेरी में बैठा हूं, बात कर रहा हूं। पहले कभी सोचा था कि ऐसे करेंगे? तो हर चीज बदल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया अमेरिका से भी आगे है, मतलब गलत चीजों में। जो अमेरिका ने सिखाया लेकिन अमेरिका खुद नहीं करता है। अगर आप देश के बारे में बात करेंगे, लोग होंगे क्या यार, तो बहुत बड़ा भक्त है। लो, अरे हम देशभक्त हैं यार। ओ माय गॉड, if I am talking about my nation, if I am talking about my country, if I am talking about my religion, मैं किसी रिलीजन को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं किसी रिलीजन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपने रिलीजन, अपना देश, अपना भेष, अपनी भाषा, अपनी जमीन, तुमको भी बोल रहा, तुम भी वही करो, मैं भी वही कर रहा हूं। तो ये किस तरह का वो है कि मैं ही हूं? कमाल है। अभिजीत जी, मैंने देखा कि आप हर मुद्दे पर, पॉलिटिक्स हो नॉन पॉलिटिकल हो, हर मुद्दे पे अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं, बहुत ही फ्रैंकली बात करते हैं और बहुत यू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। अब ये कुछ लोगों को हजम नहीं होती है बात, स्पेशली आपके क्रिटिक्स को, और मीडिया में बहुत उछलती हैं आपकी इस तरह की बातें। इवन मुझे याद है कि ट्विटर पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया था या बंद हो गया था, right? हो गया, सस्पेंड हो गया जी जी, चालू ही नहीं हुआ। बट आपकी जो बातें थी, इवन जो आपके ट्वीट्स है, जो मुझे नहीं, याद नहीं, है, अभी मैं इतना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता हूँ इंडियन पॉलिटिक्स एंड अदरवाइज, बट कुछ साल पहले मुझे याद है वो बातें आपने जो कही, वो बहुत ही सटीक बातें थी, बहुत सीधी बातें थी एंड बहुत चुभने वाली बातें। लेकिन ट्विटर में जो गाली देते हैं ना, उनका अकाउंट ही सस्पेंड होता है। लेकिन लैंग्वेज आप बहन की गाली देते हैं। हमारे सिंगर्स हैं भैया, बहुत बड़े नामी सिंगर हैं, बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। एक तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सुबह शाम तक वो प्राइम मिनिस्टर को गाली देते रहते हैं। कुछ तो वो म्यूजिक शो के जज भी हैं। मैं अपने देश को प्रेम करता हूं, देश के अगेंस्ट कोई बोलता हूं तो मैं उसकी लपेटता हूं, लेकिन क्योंकि मैं एजुकेटेड हूं तो मुझे लैंग्वेज मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डॉग कह दिया तो चलेगा, लेकिन डॉग की हिंदी बोल दी ना तो आप गए काम से, वो आप नहीं बोल सकते। आई लव माई डॉग, ठीक है, अरे आई लव माई कुत्ता, तो गए आप काम से। आपने डॉग को कुत्ता कैसे बोल दिया जी? डॉग तो इंसान होता है, कुत्ता गाली होता है। यस, आई एम अ डॉग। मुझे कोई डॉग बोल दे तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं डॉग जैसे इतना बड़ा इंसान नहीं हो सकता हूं। लेकिन डॉग को अगर गाली लगे कि मैंने तुमको इंसान बोल दिया, तो वो भी फील कर सकता है कि यार इसने मुझे इंसान क्यों बोल दिया। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को डॉग बोल दो तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है कुत्ता बोल दोगे तो प्रॉब्लम है। बस वही है कि हमारे लैंग्वेज में आप नहीं बात कर सकते जी। अपनी लैंग्वेज में उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं, प्रोफेसर, यू आर अनक्वालिफाइड, यू आर अनएजुकेटेड, यू आर इलिटरेट। Your biggest qualification is you speak English, and you are PhD, doctorate. आपको इंग्लिश नहीं आती, that is your grammar. English is grammar and language. दुनिया के बड़े से बड़ा आदमी इंग्लिश नहीं बोलता। That is respect to your nation. That's a respect to your संस्कार। आप बांग्ला में बात कीजिए, आप हिंदी में बात कीजिए, आप संस्कृत में बात कीजिए, आप मलयाली में बात कीजिए, आप पंजाबी में बात कीजिए, गुजराती में बात कीजिए, उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आप कोई मैथ्स में बोले मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, मैं अभी ऐसे बता दूंगा, उसकी कोई इज्जत नहीं है। जो आदमी एक कैलकुलेटर लेके कर रहा है, कैलकुलेटर वाला आई चैलेंज ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उसको ये करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बता देता हूं। तो सेम प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, आप समझते नहीं हो, यू थिंक आई एम अ फूल। आप जब बड़े आदमी बन जाओगे तो लोग आपकी लैंग्वेज नहीं सुनेंगे। आप पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी आज हमारे देश में इतनी ये सब क्यों हो रहा है, दैट इज लोग सोचते हैं जिसको इंग्लिश आती है वही क्वालिफाइड है, जबकि उसका क्वालिफिकेशन नहीं है। उसका क्वालिफिकेशन है ओनली द लैंग्वेज। सो ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी है। सो ट्रू। एंड कहते हैं कि म्यूजिक डजंट हैव ए लैंग्वेज। तो थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं अभिजीत जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो आपके म्यूजिक के ऊपर या आपके ऊपर कोई वेस्टर्न सिंगर का इन्फ्लुएंस है फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, मेरे लिए वेस्टर्न सिंगर आशा जी हैं, मेरे लिए वेस्टर्न सिंगर लता जी हैं, मेरे लिए वेस्टर्न सिंगर हेमंत कुमार हैं। यू हैव टू बिलीव दैट। ये नयन डरे डरे, ये नरे, अब इसमें से हिंदी हटा दीजिए। मेरे म्यूजिक, मुझे लगता कि ये शायद यही वेस्टर्न, मेरे लिए वेस्टर्न सिंगर रफी साहब से बड़ा कोई नहीं हुआ। ओ पिया तररररन, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। हम लोग को तब बचपन में बताया था कि दिस इज वेस्टर्न काइंड ऑफ सॉन्ग। इंडियन क्या है? जनक जनक तोरी। इंडियन क्या है? दिन ढल जाए हाय, रात न आए। ये क्या आदमी गा रहा है? तो आप ठीक ही कह रहे हैं, म्यूजिक का कोई वो नहीं होता, लेकिन म्यूजिक एक शैली होती है। तो मुझे अगर ऐसा लगता है कि वेस्टर्न यही है, तो मेरे लिए वेस्टर्न इसी को रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न सिंगर जो रियल होते हैं, टेरिफिक, उसको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन कीड़ा है तो उनको हम कोशिश करेंगे, क्यों? आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप घोड़ा बनने की कोशिश करोगे, नहीं बन सकते, आप रहोगे वही। तो उसकी इज्जत करो ना, जो आप हैं वो नहीं करो। ये स्टाइल में खुद ही खो जाते हैं, खुद ही रह जाते हैं, खुद ही डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, सब होता है। तो लेट इट बी। मुझे इंडियन, मुझे ज्यादा संस्कार, मुझे अब्रॉड में लोगों में ज्यादा संस्कार लगता है आज इंडिया से ज्यादा वहां पे। क्योंकि वो लोग भारत को, अपनी कंट्री को मिस करते, तो हर चीज कोशिश करते हैं कि इंडियन करें। और इंडिया में क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा इंडियन देखते हैं, तो दे थिंक पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। या और मेरी एक और ऑब्जर्वेशन रही है, आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इज दैट, कि जो देश, शहर या गांव जहां से भी आप आते हैं, उसको जब छोड़ के जब वहां से आप माइग्रेट करते हैं, तो आप नई जगह जाके बसते हैं, नई लैंग्वेज सीखते हैं, आपका दूसरी लैंग्वेज हो जाती है, जो भी चेंज होता है थोड़ा बहुत। बट जो आपकी मदर टंग है, जो आपके शहर की, आपके देश की, आपके गांव की, वो वहां पर चेंज होती रहती है, वो इवॉल्व होती रहती है। आप नई जगह आके अभी भी वही पुरानी भाषा बोल रहे हैं अपने शहर की, अपने गांव की, लेकिन आपके गांव और आपके शहर, आपके देश की भाषा एक्चुअली चेंज हो चुकी है, जो 5-10 साल में बहुत नोटिसेबल चेंज आ जाते हैं। तो एक डिफरेंट डिक्शनरी होती है। तो आप जब वापस जाते हैं तो आपको वो फर्क साफ नजर आता है? नहीं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। जब मैं कानपुर यूपी से आया, तो मुंबई की हिंदी अलग थी, तो इसका मतलब इंडिया की हिंदी चेंज नहीं हुई, रादर मुंबई की हिंदी और बेटर हो गई। मुंबई की हिंदी अपुन का जाने का, अब वो बदल गया, अभी थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया, इंप्रूव हुआ है मुंबई की हिंदी। क्योंकि जब मैं आया था मुंबई में, तब मुझे ऐसे ऐसे वर्ड थे जो वहां पे लोग रेगुलर यूज करते, मुंबई में उसका मतलब गाली होता था। उसका एक्सेंट या उसका प्रोनाउंसिएशन उनको लगता था गाली है, जबकि गाली नहीं है, वो रेगुलर है। तो उसको, तो मुझे लगता है कि फिल्म इन्फ्लुएंस से मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती गई, तो मुंबई की हिंदी, महाराष्ट्र की हिंदी भी बेटर हो गई। आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियन को सुनिए जो हिंदी बोलते, बहुत अच्छी बोलते हैं। अभी आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे राज ठाकरे, अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनको आपने हार्डली कभी हिंदी बोलते हुए सुना होगा, ठीक है? लेकिन जब वो शख्स हिंदी बोलता है, इतनी बढ़िया हिंदी बोलता है, इतनी बढ़िया हिंदी बोलता है
कि मैं सोचता हूँ क्या बोलता, ये अपना मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं मराठी में बात करूंगा, मैं महाराष्ट्र में मराठी में बात करता हूँ, लेकिन जब हिंदी बोलते तो गलत नहीं बोलते। बहुत से लोग हैं गलत बोलते, लेकिन वो सही बोलता है। तो इसका डेडिकेशन आप सीखते कैसा है। मैं तो बताता हूँ, इंडिया में बहुत से क्वालिफाइड लोग ऐसे हैं, दे स्पीक बेटर इंग्लिश देन अमेरिकन्स, देन ब्रिटिशर्स। हाँ, एंड स्पेशली ग्रामर में। हाँ हाँ, ज्यादा अच्छा बोलते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं बोलता हूँ, मैं अमेरिकन की तरह बोलता हूँ। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। गाँव तराना यारा झूम झूम के होले ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, माने न कहना पागल मस्त पवन सा दिल ये रोले ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। तो अभिजीत जी, आपके 2 बेटे हैं ना सर? जी, और एक का नाम तो जय ही है, राइट? आप भी मेरे बेटे जैसे ही हो, बेटे ही हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो मैं आपसे पूछना ये चाहता था कि आपके बेटे क्या परस्यू कर रहे हैं? आई मीन दे आर आल्सो इनटू म्यूजिक और सिंगिंग। मैं फॉर श्योर जब भी उनसे मिलूंगा तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछूंगा ये बात, लेकिन आप एज ए फादर क्या देखते हैं? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बहुत से सिंगर्स दोस्त हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, वेरी गुड सिंगर। ऑब्वियसली हेरिडिटी में मिला है उनको, रियासत में मिला है टैलेंट, किसी का बेटा, किसी का बच्ची। लेकिन सिंसियरली कोई इसमें आ नहीं रहा है, क्योंकि दे कैन सी कि मैं तो सिंगर हूं। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो देख रहा है कि दे आर सिंगर्स, और उन्होंने देखा कि हम लोगों को हम कैसे करते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे वो करते हैं। वो दे थिंक कि ये लोग अगर ऐसा गा रहे हैं और इस कैटेगरी में मुझे भी आना है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या है। या तो दे हैव टू बी क्वालिफाइड कि मैं अच्छा नहीं गाऊंगा, मुझे इसको प्रोसेस में डालना है, सिंगिंग करके मेरे सॉन्ग को मैं प्रोसेस में डालकर प्रोसेसिंग करूंगा। वो है म्यूजिक आज के दिन में। अच्छा सिंगर या अच्छा म्यूजिक नहीं, सब प्रोसेसिंग से आएगा। क्या साउंड निकलेगा, कहां से क्या आएगा, कहां पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना वॉल्यूम। उफ, आई फेल्ड। मैं अभी ऑनलाइन म्यूजिक सीखूंगा, वो बहुत से आ गए सिंगर लोग जो सिखा रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं कभी अगर मौका मिला तो मैं भी सीखूंगा। कभी सीखने का मौका नहीं मिला, तो शायद अब मौका मिल जाए, कहीं एडमिशन मिल जाए, ऑनलाइन गाना सिखा रहे हैं तो मैं भी सीख लूंगा। मैं भी लाइन में कि कैसे सीखते हैं, मुझे कोई बता दे कि कैसे सीखते हैं, और ना सिखाने का कितना पैसा लेते हैं।
आपने एक बात कई बार कही है कि जो आजकल गाने आ रहे हैं इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कुछ ज्यादा नहीं होती है ना, 3 महीने, 6 महीने, एक साल। और 31st की पार्टी हो गई या क्लब्स की जो पार्टीज हो गई, वहां बजते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब किसी को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कोई घर पे बैठा अच्छे से सुनना चाहता है, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहता है, तो वो सिर्फ एक ही तरह का म्यूजिक इसी तरह का सुनता है। लाइक आपके गाने सुनते हैं, किशोर जी के गाने सुनते हैं। ये सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने खुद फील किया जब हम अपने फार्म हाउस में जाते हैं, हमारी 3 घंटे की ड्राइव होती है मुंबई से पुणे तक की। तो मैं मेरे बच्चे जब अभी थोड़े बड़े हो गए, एक की शादी हो गई और दूसरा मतलब ये अभी 28-29 के एज में, इसमें एज में है, तो उनके जो म्यूजिक होता था तो काफी दिन वो 3 घंटे तक वो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था, मुझे लगता है ये शोर है, मुझे लगता है ये म्यूजिक कहाँ है, ये तो बात कर रहे हैं और इफेक्ट चल रहा है और सिर्फ वो कर रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज देयर ओरिजिनल म्यूजिक जो हो रहा किसी और कंट्री का। मालूम पड़ा वेस्टर्न गाने में मैक्सिमम स्पेनिश वो लोग सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं वो। तो उसके बाद आजकल मैं देख रहा हूं पिछले करीब 3-4 साल से उस गाड़ी में मैं म्यूजिक ढूंढता हूं तो मेरा साथ उस टाइम सीडी में हम चलाते थे, करीब 100 गाने होते थे, कुछ होते थे MP3, तो वो सब चले गए। ये लोग अपना उसमें ब्लूटूथ और उसमें गाड़ी में चला देते थे। अब देखता हूँ सिस्टम वही है, लेकिन अब ये लोग सिर्फ मेरे गाने नहीं, अब ये किशोर कुमार के गाने से शुरू करते हैं और मेरे तक आते हैं। हमारे बेटे जो मेरे गाने नहीं सुनते थे, किशोर कुमार के गाने नहीं सुनते थे, ना फोर्सबली इनको सुनाया गया है, क्योंकि जब तक ये लोग किशोर कुमार के गाने सुने तब तक हम लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते गए। पहले हम 2 BHK में रहते थे, फिर हम बंगलों में गए, फिर हम फाइनली एक पेंट हाउस में आए। तो उनको कभी मौका नहीं मिला कि उनको कि इधर ये गाना चला, यही चला। फाइनली में मुझे वही सुनना पड़ता था जो वो सुनते हैं। सो मुझे 4 बोतल वोडका और क्या क्या, और कभी मैं कुत्ता बना, पता नहीं क्या क्या है, और साड़ी का फॉल, और पता नहीं, मुझे भी डांस करना पड़ता है उनकी पार्टी में। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, पूरे 3-4 गाने बाद डीजे आके बाद तो लोग बैठ जाते, फिर म्यूजिक चला के फिर जो भी हमारे यहाँ बार जाता सब पुराने गाने शुरू कर देते हैं। गाड़ी में भी वही गाना चलता है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ यार प्लीज मेरा गाना तो मत लगाओ। मैं सुन के मैं अपने गानों को, मैं खुद की सिंगिंग को क्रिटिसाइज करता हूँ। मैं ऐसा आदमी, तो मुझे क्यों इरिटेट करते हो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना। अभी जो मैं आपको सुना रहा हूं, दिस इज द वे आई शुड हैव संग। ओके, आई कैन नॉट डिफरेंशिएट दैट। आप नहीं, वो इसलिए तो आप सिंगर बन सकते हो, लेकिन आप सिंगर नहीं हो, तो इसलिए वो सोच रहा, तो आप डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप समझ गए ना मेरा आंसर। तो डिफरेंशिएट करने के लिए वो होना, तो मैं जब सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यार अलका जी उस टाइम इतने एक्सपीरियंस सिंगर, मेरे लिए उस समय मतलब लता जी के गाने अभी पूरा छाए हुए थे, क्योंकि लता जी को नहीं गाना था, ये गाना मैं उनके साथ गाने वाला था। और
बाद में मुझे बोले पागल है क्या, तू नहीं गाने वाला था ये गाना, अगर लता जी गाती ने हाँ कर दिया होता तो ये गाना बाला सुब्रमण्यम जी का गाना था, और मैं काम का खुश हो रहा हूँ कि मैं लता जी के साथ मेरा गाना होने वाला था। तो किसी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तुमको इसलिए रखा गया क्योंकि अलका जी ने गाया। तो गाना बना था लता जी और बाला सुब्रमण्यम के लिए, फिर भी मैंने गाया। और जब मैं सुनता हूँ मेरा ओरिजिनल गाना, जब ये लोग लगाते हैं तो मुझे लगता है काश मैंने एक बार 3 बार सुन के अलका जी का सुन के फिर से गाया होता, क्योंकि साथ में गा रहे हैं ना माइक में, रिकॉर्डेड अगर सुन के फिर से डब किया था, आई कुड हैव संग बेटर। बेटर मतलब बहुत ही बेटर। ऐसे उदासी तेरे, ये जो मैं तेरे बोल रहा हूं ना, कैसी उदासी तेरे, ये बोला है। कैसी उदासी बोल रहा हूं, कैसी उदासी तेरे, कितना फर्क है। मुझे ऐसा गाना चाहिए था जैसे मैं अभी गाता हूं, या जैसे मैंने चलते चलते गाया है, या जैसे मैंने मैहुना गाया है, या जैसे मैंने यस बॉस गाया है, तब ये गाना गाया था तो शायद। और अब सबसे बड़ा कॉमेडी क्या हुआ, आप ये भी सोचिए, हमको बताया जा रहा है कि ये गाना बहुत इंटीमेट सॉन्ग है, बहुत क्लोजनेस है। वादा रहा सनम, जतिन ललित की लाइफ में इतना बड़ा प्रोडक्शन, एक बड़ी वीनस की पहली फिल्म, अब्बास मस्तान की पहली फिल्म, अक्षय कुमार, अभी कंट्रोवर्सी हो गया कि अक्षय कुमार को मैंने बोल दिया कि गरीबों का, अरे ऐसा नहीं है, मैं गरीबों का अमित कुमार था। मिठुन यूज्ड टू से, मिठुन दा कि यार मुझे कुछ तो दो, स्टेटस दो, अमिताभ बच्चन को नहीं अफोर्ड कर सकते तो मुझे लेते हैं, तो मैं तो गरीबों का अमिताभ बच्चन हूं। तो इट वाज अक्षय कुमार जो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा था, बोले दादा ये गाना है गा दो यार, मैं गरीबों का मिठुंदा हूं, मुझे अभी ऐसा गा दो गुरु, मजा आ जाए। तो ये सब चीजें हम लोग शेयर करते हैं, और किसी ने बोल दिया लगा के कि ये देखो मैंने ऐसा कहा, तो दैट इज देयर प्रॉब्लम। सो लेकिन ये कहने की बात है कि कहां से कहां आदमी बन जाता है। सो डायरेक्टर ने मुझे बताया कि ये इंटीमेट सॉन्ग है, बहुत क्लोज है, पैशनेट सॉन्ग है। और मैंने कहा अरे यार मेरे से ज्यादा पैशनेट कैसे हो सकता है यार, चल। और मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ये मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ गाना होगा जैसा वादा रहा सनम, होंगे जुदा ना हम, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा जमाना, ये सब होगा। और हुआ क्या, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, वो बेली में हाथ डाल के डांस करे, तुम करे। तो हम सोच के गा रहे कि ये ऐसा है, हाईली रोमांटिक गाना, क्लोज रोमांटिक, इसके बाद ही शायद बत्ती बुझ जाएगी और बेडरूम का सीन होगा, फिर दिया ऐसे से हिलने लगेगा, फिर ऊपर से पानी का टप 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 गिरेगा, कुछ ऐसा लव मेकिंग भी हो सकता है, इतना हो सकता है। वो सोच के मैंने गा दिया। बाद में वो महाबलेश्वर में टेबल टॉप पे दोनों डांस कर रहे हैं ओपन। सो हम भी देखते हैं, डायरेक्टर भी देखते हैं, स्टार लोग भी देखते, वो भी बोलते हैं क्या है यार, मुझे कैसे पता है। तो ये अगर पिक्चराइज देखें तो गलत सिंगिंग है, लेकिन हमको जो समझ में आया उस हिसाब से मैंने सिंगिंग की थी। सेम केस ये खैर बहुत पॉपुलर हो गया है, मैं बोलता रहता हूं, मुझे आ ई गाने को भूला गया था, तो उसका भी यही केस है। मैंने देखिए ना गाया कैसे, टेक्निकली मेरा दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो। अब डायरेक्टर
कोरियोग्राफर जो था वो भूल गया कि दिल ऊपर होता है। आप पिक्चराइज में देखिए, दिल ना तोड़ो में साड़ियां, औरतें साड़ी ऊपर कर रही हैं, मेरा दिल ना तोड़ो, वो दिल कहां नहीं, साड़ी ऊपर करके कहां से दिल दिखा रहे हो भाई। तो कभी कभी लोग बोलेंगे यार वो मजा नहीं आया, वो तो थैंक गॉड गोविंदा था जो उसने वो एक्सप्रेशंस दिया कि इसमें भी मैं इसको कॉमेडी करके ले आऊंगा। लेकिन अगर हमको बताया जाए कि ये रूठ के ना चाहो मेरी जान, मैंने ऐसा गाया है पास, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, रूठ के ना चाहो मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान, मैं उठा, और वो रूठ के न चाहो मेरी साड़ी उठा रहे पापा, और वो कुर्ता, शक्ति कपूर कुर्ता ऊपर कर रहा है, वो कच्छे में आ गया है। तो इससे बड़ा कॉमेडी और क्या हो सकता है। मैं रोमांटिक सोच के गा रहा हूँ। और मुझे याद है कि उस समय ये गाना बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था, स्पेशली जब पिक्चराइजेशन में, जैसे आजकल बहुत सारे गाने हो जाते हैं नहीं ये तो उस टाइम का। देखिए इस गाने में कहीं भी फुअर नहीं है, कहीं भी स्लैंग लिरिक्स में कुछ नहीं था, कहीं पे भी नहीं है। पिक्चराइज भी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, यूं यूं किया, उसकी जगह तो चड्डी पहन के गाना गा रहे लोग, तो वो ज्यादा स्लैंग है ना, बिना कुछ पहने गा रहे। तो क्या भरोसा जो आजकल के गाने हैं विच वी कॉल इट वल्गर और फुहरता वाले, वो कल जाके क्लासिक हो जाए, 20 साल बाद क्लासिक हो जाए वो गाने। हाँ बिल्कुल भाई, वही हो सकता है कि भाई आप जरा एक चाय देना यार, एक गिलास ठंडा पानी की जगह वोडका बोल देंगे, यही हो गया ना। आपके इतने सारे सुपर डुपर हिट्स गानों में जो मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट गाना है, जिसने मेरी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाला है शुरू से लेके आज तक। इवन शुरुआती दिनों में तो मुझे याद है कि मैं इस गाने को हर रोज आरती की तरह ही सुनता था। मेरी मम्मी मंदिर में, घर के मंदिर में आरती कर रही है और मैं इस गाने को सुनकर अपनी आरती, अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से। और मुझे लगता है कि आपके जितने भी लिसनर्स होंगे, जितने भी फैंस हैं, उन लोगों की जिंदगी में भी कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव वाइब्स ये गाना जरूर लेके आया होगा। आज भी जब मैं कभी लो फील करता हूँ तो इस गाने को सुनता हूँ और उतना ही उत्साह मेरे अंदर आता है जो शुरुआती दिनों में आता था, और लगता है कि बहुत कुछ करना है, क्योंकि बस इतना सा ख्वाब है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, दिस इज अ मेजर, उस गाने को क्या बोलते हैं, वो गाना है ये, इसमें हमारे एक बहुत बड़े शेयर मार्केट के ही इज देयर, एक की तो डेथ हो गई जिनके ऊपर फिल्म बनी थी, हर्षद मेहता, उनके बाद एक और बहुत बड़ा स्कैम आया था। तो वो स्कैम जिनके नाम पे हुआ था, उस टाइम वो कैसेट होता था 90 मिनट 60 मिनट्स का कैसेट होता था। मैं बोलता हूं होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था अभी भी होता है। हम अभी भी म्यूजिक के उस दौर पे चल रहे हैं कि जहां पे म्यूजिक लगाओ यार, ये ऐसा। सो वो बंदा 90 मिनट्स का कैसेट लगा देता था, एक ही गाना लूप में, फिर एक साइड से बी साइड हो जाता था अपने आप, वो 90 मिनट्स तक वो गाना बजता था। ये जो बस इतना सा ख्वाब है सॉन्ग, बस इतना, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। बस इतना सा ख्वाब है यार, कमाल के यार, हिंदी क्या सोचते हो। तो ये जो है ना, ये एंथम है एक्चुअली, दिस इज एन एंथम। ये जावेद साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लिखना नहीं, उनका सोचना, इस गाने का सोचना कितना बड़ा
लिख तो कोई भी सकता है, सोच लिख दे। क्या सोचा होगा इस जावेद साहब ने इस गाने को। और जावेद साहब का एक प्रेडिक्शन गलत हो गया। जावेद साहब ने मुझे बोला था कि अभिजीत तुमको इस गाने में अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं कोई ऐसा गीत में मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गाने में नहीं मिला मुझे। मैं भी चाहता था इस गाने में मिले, क्योंकि एज अ सिंगर, एज अ वो, मुझे मालूम है कि मैंने इसमें क्या मॉड्यूलेशन किया था। ये गाना एक बार में नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ था। मैं ललित को बार बार फोन करता हूँ, जतिन ललित को, यार ओरिजिनल इसके पहले वाला जो वर्जन है जो किया था वो तेरे पास है तो दे ना। तो हम देंगे, बहुत वैल्यूएबल है वो। तो वो कब देगा पता नहीं। तो उस समय भी हमको क्या बोल के गवाया गया था। बाद में फिर ट्रैक चेंज हुआ, बहुत कुछ हुआ, फिर मैंने गाया। सो दिस इज एन एंथम। किसी के लिए भी एंथम है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो कभी क्योंकि मैं तो सुनता नहीं हूं ना, मैं तो गा देता हूं। तो आप उस समय क्या फील कर रहे थे जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ? जैसे आपने मुझे दूसरे गानों की स्टोरी सुनाई कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे उस समय, इस गाने के टाइम पर आप कैसा फील कर रहे थे? उस टाइम थोड़ा सा वो हो गया था कि क्या हो रहा है यार, एक बार गाना इतना अच्छा हो गया, उसको फिर से री रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। ये डर लगता था कि गाना फिर रिजेक्ट ना हो जाए। बहुत होता था। जितने मेरे लाइफ में ऐसे हमने गाने गाए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। काश वो गाने आ गए होते। तो ऐसे ही बड़े बड़े गाने थे वो, कभी नहीं वो भी रिजेक्ट कर दिया फिल्म में कि नहीं ये गाना नहीं चलेगा। अभी तो मैं शाहरुख खान साहब की तारीफ भी करूंगा, उन्होंने किस गाने को रिजेक्ट किया था। उनकी बात सही थी कि गाना यार कमर्शियल वो नहीं, तो वो बात सही थी उनकी, और वैसा ही हुआ। लेकिन अमर हो गया गाना, अभी बताता हूं मैं। तो ये इस गाने का डर लग रहा था यार, ये गाना इतना 2 बार गाया, रिजेक्ट ना हो जाए यार। तो एक डायरेक्टर होता कि नहीं मुझे ये गाना चाहिए, उसकी सोच है, जावेद साहब ने लिखा है, मैंने सोचा है। लेकिन बाकी बहुत से लोग होते हैं जो लोग हमेशा देखते कि नहीं यार कमर्शियली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये कमर्शियल गाना बिल्कुल नहीं है, ना था। पता नहीं 2 बार लोगों को पसंद नहीं आया, 2 बार, फिर तीसरी बार अब तक शो नहीं था गाना होगा कि नहीं होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो रह गया। शाहरुख खान की मैं बात बताता हूं। अगर आप बोलेंगे ना कि शाहरुख के आपने इतने गाने गाए हैं, लेकिन मैंने गाए हैं, मेरे से भी ज्यादा या मेरे जितने भी दूसरे लोगों ने भी गाए हैं। लेकिन पता नहीं आपने अभी तक नहीं कहा। सब लोग ये कहते कि मैं शाहरुख खान मेरी आवाज है। एक ही बात है, एक ही साथ है, दोनों आवाज तो मेरा है ना। सो लोग मुझे, जैसे देवानंद के लिए रफी साहब ने भी बहुत गाने गाए, हेमंत कुमार जी ने भी गाए, तलत महमूद ने गाया, किसने नहीं गाया, मैक्सिमम रफी साहब ने गाए। लेकिन देवानंद साहब का वॉइस एक ही था, बोलते थे किशोर कुमार। सेम राजेश खन्ना के गाने रफी साहब ने इतने गाए, मुकेश जी ने गाए, हिट हुए, सुपर हिट। लेकिन राजेश खन्ना किशोर कुमार कॉम्बिनेशन, जब भी राजेश खन्ना किशोर कुमार, एस.डी. बर्मन, राजेश खन्ना किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन जब भी आया तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया। तो सेम शाहरुख खान के मेजर बड़े से बड़े इसमें लीजिए मैं नहीं हूं। जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ, रे बाबा जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ, रे बाबा जाता है तू कहाँ। सुन प्यारे रुक जा रे, प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते
चलते कैसे ये फासले हो